Good afternoon, students. How are you? I hope you all are healthy and safe at your home with your family members. Welcome again to your online SST class. Yes, students, as you know, we are learning lesson 2. Lesson 2 is the Northern Mountain. Yes, students, in this lesson, we learned about the Himalayas. Yes, and some name of the important peaks and Purvachal hill ranges and about the climate and vegetations. So today we are going to learn about the wildlife. Okay, today's topic is wildlife. We are going to learn about the wildlife. Yaks, goats, snow leopards, musk deer and wild sheep are some of the wildlife of the northern mountain. नॉर्थन माउंटेन के जो वाइल्ड लाइफ जो है आर नॉर्थन माउंटेन की जो वाइल्ड लाइफ जो कौन कौन सी है याक गॉट स्नो लियोपर्ड snow leopard and musk deer and wild sheep. Musk deer and wild Dundee sheep. Okay, these are wildlife of northern mountain. Okay, students. Now the forests in the middle Himalayas range have tigers. ये क्या था? northern mountains की wildlife थी. Now the forests in the middle Himalayas. Middle Himalayas में the forest जो है the forests in the middle Himalayas Himalaya range have tigers. Range have क्या रखते हैं मिडिल हिमालय रेंज में? टाइगर्स, लियोपर्ड्स, राइनोसोर्स एंड मैनी वेराइटीज ऑफ डियर्स. ओके, टाइगर, लियोपर्ड्स, dinosaurs and many variety of varieties of deer. Varieties of deer. Okay, so these are wildlife find in the middle Himalayas range. Okay, students. Now the forest in the outer Himalayas range. The forest in the outer Himalayas range. Outer Himalaya range have आउटर हिमालय रेंज में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? हाइनस, जैकल्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. हाइनस मीन्स क्या होता है? लक्कड़बग्गा जो होते हैं. एंड जैकल्स, elephants and tigers. Elephants and tigers.
Okay, and they are wildlife find in the outer Himalayas range. So there are many national park and wildlife sanctuaries in the northern mountains. Northern mountain में क्या है, बहुत सारे क्या है, many national park. Yes, northern mountain में क्या है, many national park. Many national parks and wildlife sanctuaries and wildlife sanctuaries. सेंचुरीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अभ्यारण्य, जो वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के लिए जो अभ्यारण्य बनाए हुए इन द नॉर्थन माउंटेन, ये सब क्या है, नॉर्थन माउंटेन में पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर, इनमें से 2 नेशनल पार्क आर नेम आर गिवन इन योर बुक. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. यस, नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट. Yes, Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park. Okay, and second is other one national park is Rajaji National Park. Rajaji National Park. Okay. These are many national park in the northern mountain, but only 2 names are given in your book, and so many wildlife sanctuaries also in the northern parts. So students, this is about the wildlife. Okay, so you can see the Jim Corbett National Park. There are find elephants. So see in your book on the page number 11, elephants at the Jim Corbett National Park. This is Jim Corbett National Park. There are elephants are shown in the book. Okay, Jim Corbett National Park में क्या है, elephant. Okay, so now next topic is importance of northern mountain. So now we are going to learn about the importance of northern mountain. ओके, क्या क्या इम्पोर्टेंस है नॉर्थन माउंटेन्स की, अब हम देख लेंगे. अभी हमने वाइल्ड लाइफ देखा, नाउ आगे हम क्या देखने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन माउंटेन. इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन माउंटेन. नॉर्थन माउंटेन्स किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंस है. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स. द नॉर्थन माउंटेन आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इंडिया. जो नॉर्थन माउंटेन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है टू इंडिया के लिए. सो फर्स्ट इज दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर. ये जो नॉर्थन माउंटेन जो होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज a natural barrier. Yes, they act as a natural barrier protecting our border. Protecting our border. ये नॉर्थन माउंटेन जो है हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है एक नेचुरल बैरियर की तरह. कैसे एक्ट करता है, एक नेचुरल प्राकृतिक बैरियर रुकावट जो होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. नेचुरल जो बैरियर के रूप में एक्ट करके हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है. सो दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ northern mountain for India. So now second is they prevent the cold wind of northern Asia from entering our country. ये क्या करते हैं, they prevent, बचाते हैं. किससे बचाते हैं, कोल्ड एयर से. they prevent the cold wind
कोल्ड विंड जो होती है, ठंडी हवाएं जो चलती है, कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थन एशिया, नॉर्थन एशिया की जो कोल्ड विंड जो होती है उससे क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, नॉर्थन एंट्रिंग को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, नॉर्थन एशिया फ्रॉम एंट्रिंग आवर कंट्री, नॉर्थन एशिया से हमारी कंट्री में एंट्रिंग से को क्या करते हैं, से क्या करते हैं, बचाते हैं हमें, प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्थन एशिया फ्रॉम एंट्रिंग आवर कंट्री, नॉर्थन एशिया से हमारी कंट्री में कोल्ड विंड्स को एंटर करने से रक्षा करता है, हमारी सुरक्षित करता है। द फॉरेस्ट इन दिस माउंटेन प्रोवाइड अस विद टाइमर, मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। फॉरेस्ट जो होते हैं, इसमें जो नॉर्थन माउंटेन के जो फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें प्रोवाइड कराते हैं जो नॉर्थन माउंटेन्स की जो नॉर्थन माउंटेन्स के फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड अस टाइमर, मीन्स इमारती लकड़ियाँ जो होती है ना, टाइमर्स एंड मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स, मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। ओके, सो जो नॉर्थन माउंटेन के फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, इमारती लकड़ियाँ, मेडिसिन्स और अदर यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज number 4 is the northern mountains stop the monsoon winds from going further north, resulting in heavy rainfall in the plains of India. Yes, तो northern mountain क्या stop करता है, ये क्या करता है, stop the monsoon winds, मानसून की विंड जो होती है, जो हवाएं जो चलती है, उन्हें क्या करता है, स्टॉप करता है, फ्रॉम गोइंग फर्दर, फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ। ये मानसूनी विंड को कहाँ जाने से, फर्दर नॉर्थ से जाने से स्टॉप करता है। यस, सो रिजल्ट क्या होता है, इन हैवी रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, और रिजल्ट में क्या होता है, हैवी रेनफॉल, रिजल्टिंग हैवी रेनफॉल इन प्लेन्स इंडिया, इन प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया, और इसका क्या होता है, इंडिया में प्लेन्स जो होता है, समतल जगह जो होती है वहाँ पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। सो स्टूडेंट, दीज आर 4. नाउ नेक्स्ट नंबर 50, several rivers originating in these mountains not only provide us with water but they help us generating electricity by constructing dams on them. रिवर जो होती है नॉर्थन माउंटेन में, ये क्या करती है, हमें originating in these mountain not only provide us with water, वो हमें केवल पानी प्रोवाइड नहीं करती है, not only provide water but also they help us generate the electricity. Yes, so river जो होती है, rivers क्या करती है, help us जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है। यस, एंड और क्या करती है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन डैम, हम उन पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, डैम बना करके, हम रिवर्स पर डैम बना करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ माउंटेन. Okay, so you also
see the each and every point very carefully. Okay students, so now next is open your book page number 12. In your book page number 12 there is a picture are given. Yes students, see the pictures. Whose picture is this? Yes, which animal is shown in the picture? Which animal is shown in the pictures? This is yak. What is this? This is a yak. Okay, you write here yak. What is this? This is a yak. And question number 2 is which part of India are these animals found in? इंडिया के कौन से पार्ट में ये एनिमल्स पाए जाते हैं? राइट डाउन सम इम्पोर्टेंस ऑफ सच एनिमल्स. और इन एनिमल्स की कुछ इम्पोर्टेंस लिखनी है. ओके, कौन कौन से पार्ट में ये एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया के और क्या इम्पोर्टेंस. सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया आर दीज एनिमल्स फाउंड इन? राइट डाउन सम इम्पोर्टेंस ऑफ सच एनिमल्स. तो इंडिया के कौन से पार्ट में ये एनिमल्स पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, इन विच पार्ट ओके ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर. एंड सम इम्पोर्टेंस ऑफ सच एनिमल्स. सो प्राइमरली फॉर देयर मिल्क. सबसे इम्पोर्टेंस क्या है इनका? मिल्क के लिए, फाइबर के लिए एंड मीट के लिए. ओके, ये प्राइमरली फॉर देयर मिल्क. Yes, for their milk, fiber and meat, and as beast of burden. Beast of burden means बोझ से ढोने वाला जानवर. ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइमरली फॉर देयर मिल्क, फाइबर एंड मीट, एंड एज beast of burden. Okay students, so see and you also fill it in your book. Okay, both question fill in your book, only in book, and learn also. Okay, so students, for the today's class it's enough and your lesson 2 is completed. And in the next class, in the tomorrow's class, we will learn exercise of this lesson. Thank you.